No, if you are watching me to become the person who convinces someone why Member of the Soundgarden deserves to be watched, then I would not sell it as a partition film, of course, a romance, or even an Imtiaz Ali film, for that matter. I would properly sell it as a film about the human desire to return from where it has been broken, or you know has been found himself unresolved. Not to return a country, not to return to a house, but return to a version of yourself that history stole from you. And the entire film revolves around that one sentence, that I'll come back. And by the end, you realize that it is not just a promise; it is a wound that has been there, unresolved, unprepared, uncooked from last 78 years. And that film follows of course, that elderly man haunted by memories of partition and a love that remained unfinished. Decades later, he still carries the promise made in his youth that he will return back. And the narrative moves across the generations, connecting memory, connecting migration, connecting loss, connecting identity, and of course, love. Uh, you see, the problem and the central theme of this movie is the home. So Imtiaz Ali seems obsessed with one question: what is home? In Jab We Met, home was self-discovery. In Rockstar, home was pain. In Tamasha, home was authenticity. In मैं वापस आऊंगा, home becomes the memory itself, the part of the existence. The film repeatedly suggests that sometimes people do not miss the places; they miss who they were in those places and what the personality they used to carry in those places, whom you used to admire, whom you used to look for. Ishar Singh, the person, the emotional spine of the film, Nasiruddin Shah's elderly character. He's not fighting death. He's fighting very prominent to his body, that is forgetting to someone. At his age, people expect him to let go. Uh, instead he kind of refuses it to be, to move on. The older he becomes, the stronger the memory grows, and that inversion is what makes the character devastating. Every wrinkle on his face feels like that there is so much of his life that he has gone through with. Uh, so बहुत सारी चीजें हैं जो आप अलग अलग लेवल पे सोच सकते हैं. 1947 खत्म हो गया, बॉर्डर्स बन गए, फ्लैग्स बदल गए, झंडे अलग हो गए, सरकारें अलग हो गई, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं इंडिया जा पाए या आ पाए. वो दोनों जगह के बीच अटके रह गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान में मनो मजरा का गांव अटका हुआ था. खुशवंत सिंह ने लिखा था कि द फैक्ट इज both sides have been killed, both shot and stabbed and speared and clubbed, both tortured. और याद अली उस लाइन को विजुअल लैंग्वेज में टेक्निकली सामने कर दिए थे, ट्रांसलेट कर दिए थे. फिल्म किसी कौम का दर्द नहीं दिखा रही है, फिल्म इंसान का दर्द दिखाती है, अ, जो कि बहुत ज़रूरी है इस समय पे, कि किसी कौम, किसी मजहब, किसी समुदाय का दर्द दिखाने से ज़्यादा. फिल्म की शुरुआत ही एक डाइंग मैन से होती है. ईशर सिंह 95 साल, बॉडी प्रेजेंट में है, लेकिन जो दिमाग है वो 1947 में चला गया है. ये डिमेंशिया भी नहीं लगता है, ये एक आपकी सोच, आपकी मेमोरी जो है वो आपके साथ विद्रोह कर गई है. जैसे दिमाग कह रहा हो कि मैं मरने से पहले वहीं जाऊंगा जहाँ से मुझे तोड़ दिया गया था. और यही फिल्म अपना पहला फिलोसफिकल पंच मारती है पूरी तरीके से, कि हम सोचते हैं कि वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन वक्त सिर्फ जख्म के ऊपर नई स्किन, नई चमड़ी बना देता है. अंदर से वो जख्म वैसे ही रहते हैं जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाते. सरगोदा, जो फिल्म का असली कैरेक्टर भी है, आ, लोग समझते हैं शर्वरी या दिलजीत लीड में है, लेकिन नहीं. मेरे हिसाब से असली लीड में सरगोदा है. फिल्म में सरगोदा एक जगह नहीं है, एक एक लॉस्ट सिविलाइजेशन है, एक एक मेमोरी है किसी कुछ लोग की, जो लोग उस जगह को छोड़ के आए थे ये वादे के साथ कि हम वापस आएंगे. एक इमोशनल होमलैंड है, अ, जहाँ पे लोग रह रहे थे अपनी जमीनों को, अपने अ, मिट्टी को, अपने लोगों को अपने पास छोड़ के जाना पड़ा उनको अंत में, इस वादे के साथ कि वो फिर कभी कुछ ऐसा मौका बनेगा और वो लोग वापस आएंगे. आप सोचिए कितने जगह पे आज के डेट पे लोग अपने घर बदल रहे हैं, जगह बदल रहे हैं. आप कभी भी उस जगह की महसूस नहीं कर पाते. आप कभी भी निकाले हुए के अलावा कुछ और नहीं महसूस कर पाते.
आपको हमेशा ये लगता है कि इस जगह के आप बिलोंग नहीं करते हो, इस जगह के आप हो नहीं, ये जगह आपका नहीं है। और ये बात हमेशा खटकाती रहती है। अ, वो सारे लोग जो अपनी अपनी जगह से पार्टीशन के बाद बिना किसी वजह के, बिना किसी रीजन के हुक्मरानों की जिहालियत से और उनकी नाकामयाबी की वजह से इतना कुछ दरमियान उनके होता रहा, और कोई इस बात को कह भी नहीं पाया, देख भी नहीं पाया, समझ भी नहीं पाया, क्योंकि कुछ लोगों ने तय कर लिया था कि शायद यही किस्मत है, और उस किस्मत को के ना होने पर कुछ बस खड़े हो गए थे। जब यंग कीनू गलियों गलियों में घूम रहा था, तो कैमरा उसे पूरी तरीके से फॉलो करता है। कैमरा जो है वो पूरी उस दुनिया को प्रिजर्व कर रहा था, कि जैसे कि उसको मालूम हो कि ये जगह फिर से उसको किस तरह से दिखानी है। कि ऐसा लग रहा था कि जब वो जगह दिखाई जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जगह खत्म होने वाली है, जगह जा रही है, ओझल हो रही है। वो एक डिमिनिशिंग फीलिंग थी उस पूरे सीन को देखते हुए, जब भी विदांग रैना और शर्वरी स्क्रीन पे थे। और यह टेक्निक मुझे रिवर्डली खशवंत सिंह और तमस की याद दिलाती है, क्योंकि दोनों राइटर्स वायलेंस को सेंटर में नहीं रखते हैं। वो पहले एक दुनिया बनाते हैं, एक आर्ट क्रिएट करते हैं, फिर उस दुनिया को टूटते हुए दिखाते हैं। और जब वो दुनिया टूटती है तो जो दर्द होता है वो और गहरा होता है, वो आपको महसूस होता है। वो कुछ हद तक उन लोगों के पास लेके जाता है जो लोग उस दर्द को महसूस कभी किए होंगे। आ, कुछ हद तक उनके दिमाग में इस बात का इम्पैक्ट क्रिएट करने का प्रयास करता है कि ये जो सेम दर्द आप महसूस कर रहे हैं, कुछ लोग इसे महसूस करके चले गए शायद, और कुछ लोग हैं, और कुछ लोग शायद अपनी जिंदगी वैसी जिए। ये बहुत ब्रेकडाउन मोमेंट भी होता है, क्योंकि आप कभी भी अपने जमीन पर अपने लोगों के बीच में वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ने तय कर दिया था कि ये अब आपकी जमीन नहीं है। ना किसी कानून से, ना किसी राशनल से, ना किसी समझौते से, ना किसी बातचीत से। आपका दिमाग, आपका मन, आपका शरीर कभी भी उस वजूहात को ढूंढ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे हो गया। सब लोग उसकी अपनी अपनी वजह बनाते हैं, सब लोग उसकी अपने अपने तरीके के रीजन ढूंढ लेते हैं समय के साथ। पर वो जो जख्म है वो उसी तरीके से पनपता रहता है। कितने सारे लोग, कितने सारी जाने, कितने सारे लोग शायद उस पार्टीशन के हमले से बच गए होंगे, उस पार्टीशन की दर्दनाक मौतों से बच गए होंगे, उस बेरहम मौतों से बच गए होंगे। पर उनका दिमाग, उनका जिस्म, उनका शरीर शायद उस जख्म को लेते लेते कितने सारे लोग को, जो रेफ्यूजी लोग होते हैं, जो दिल्ली में रह रहे, जो अलग अलग जगहों पे रह रहे देश के, जो कहीं से निकले थे बस इसलिए कि शायद वापस आएंगे, समय खराब है बस, उन सारे लोग के दिमाग में आज ये शायद जीवन भर चलता होगा कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम भेजे गए हैं। चाहे वो कश्मीरी पंडित हो गए, चाहे या खुशवंत सिंह ने जिस कहानी के बारे में लिखा है, या पार्टीशन के बारे में। फिल्म बड़ा रिमोटली और एक बहुत कनिंग तरीके से डिस्कस भी करती है कि ये दो धर्मों ने तय कर लिया है कि हम अलग अलग रहेंगे। और करेक्टर जो है वो फिर ये ब्रेक करता है, बोलता है शायद दो नहीं, एक्चुअली में तीन करेक्टर का, क्योंकि सिख कम्युनिटी की कोई बात ही नहीं करता है। सबसे ज्यादा जब दर्द तय हुए थे हिंदू और मुसलमान के बीच में, तो उस बीच में सबसे ज्यादा किसी ने खून और लोग की बर्बरता जो सही बॉर्डर पे रह के वो सीखते, चाहे उस तरफ के चाहे इस तरफ के। कुछ अपनी जमीन छोड़ के आए भी इधर, कुछ जमीन छोड़ के नहीं जा पाए, कुछ मारे गए, ज्यादा मारे गए, ज्यादा तो मर ही गए। उनके दिमाग में क्या बीतती होगी, उनके मन में क्या चलता होगा। आप एक पल के लिए, कुछ महीनों के लिए घर से बाहर रहिए, आपको मालूम चलेगा कि अपनी जमीन पे ना होना कितना बड़ा बोझ होता है। आपको कभी वहाँ के लोग, वहाँ की मिट्टी हमेशा ये महसूस कराती रहेगी कि आप यहाँ से नहीं बिलोंग करते हैं। किनू और जिया जो थे, सब लोग इस रिलेशनशिप का लव स्टोरी समझ रहे थे। मैं इसे लव स्टोरी नहीं मानता हूँ, मैं इसे एक पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्टोरी मानता हूँ। किनू और जिया एक्चुअली एक दूसरे के साथ उतना वक्त स्पेंड ही नहीं करते कि वो बॉलीवुड वाला इंटरनल रोमांस बन सके। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि उनकी कहानी कंप्लीट ही नहीं होती, और इंसान इनकम्प्लीट चीज़ों को कभी नहीं भूलता है। कंप्लीटेड रिलेशनशिप्स मेमोरी बन जाते हैं, इनकम्प्लीट रिलेशनशिप जो होते हैं वो आपकी ऑब्सेशन बन जाते हैं, वो आपका पागलपन बन जाते हैं। और एक समय के बाद आपका शरीर इस चीज़ मान लेता है कि शायद वो हिस्सा, वो चाहे रूप, वो चाहे वो तरीके से, वो आप वैसे नहीं हो सकते, और
मुझे ये भी लगता है कि आपका शरीर फिर दो धड़ों में बढ़ जाता है। एक धड़ा मान रहा होता है कि शायद ये वापस कभी ऐसा नहीं हो पाएगा, और एक धड़ा कहता है कि शायद यही मेरी डेस्टिनी है, और फिर वो समय चला जाता है। पर वो जो जख्म है वो कभी भरते नहीं है। जो पार्टीशन का सीक्वेंस है, और यहाँ इम्तियाज अली बहुत इंटेलिजेंट चॉइस लेते हैं। वो मैसेकर को एक तरीके का स्पेक्टिकल बना के रख देते हैं सबके सामने। कोई गद्दार स्टाइल चेस्ट थम्पिंग नहीं है, कोई हाइपर नेशनलिस्ट फ्रेमिंग नहीं क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इससे कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, एक डर बना देते हैं। डर जो है वो डिस्प्लेसमेंट का, अपनी जगह को, अपनी मिट्टी को छोड़ने का। उस मिट्टी में जो आप पले बड़े हो, जिन जंगलों में, जिन पेड़ों में, जिन घरों में, जिन रास्तों में आपने रहा है, उसको शायद हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ कबीलों को छोड़ दिया है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, कि वो डिवीजन पूरे तरीके से सक्षम हो पाए। और ये मैं नहीं मानता, ये कई सारी कहानियां हैं, स्टोरी है कि ये चीज प्लान्ड थी, ये चीज किया गया था, जरूरी था करना। क्योंकि अगर आप इतना डिवाइड एंड रूल नहीं क्रिएट करते तो शायद भारत पाकिस्तान के मकसूबों पे पानी फिर जाता है। इसलिए जरूरी था लोग के बीच में नफरत पैदा करना, और उस नफरत से शायद इतने जख्म किए गए, इतने काटे गए, कि आज भी उस जख्म का जो दर्द है वो लोगों में महसूस होता है, वो गया नहीं है। एक कंफ्यूजन रहता है कि मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, मेरा सब कुछ छूट जाएगा, मेरी गलियां, मेरे रास्ते, मेरी हवेलियां, जो घर बनाए गए थे। और मुझे यहाँ मंटो की एक तोबा तेग सिंह की याद आती है। मिशन सिंह पूछता रहता है, तोबा तेग सिंह कहाँ है, तोबा तेग सिंह कहाँ है, और कोई जवाब नहीं दे पाता। फिल्म में ईश्वर पूछ रहा है, मेरा घर कहाँ है, और 80 साल तक कोई जवाब नहीं देता है। अगर आप ध्यान से देखो तो पार्टीशन लिटरेचर में ट्रेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं होती है। ट्रेन एक मूविंग ग्रेवयार्ड की तरह होती है, कब्रिस्तान होता है जो चल रहा होता है हिंदुस्तान से पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान में ट्रेन मौत लेकर आती है। तमस में जो ट्रेन है वो माइग्रेशन लेकर आती है। यहाँ ट्रेन का एक मेमोरी है। जब भी रेल की आवाज, सफर या मूवमेंट का सिंबलिज्म आता है, मुझे लगता है कि इम्तियाज कॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल पर पार्टीशन लिटरेचर को सल्यूट कर रहा है। क्योंकि 1947 का सबसे बड़ा सिंबल जो है वो न गांधी है, न जिन्ना है, न नेहरू है, वो ट्रेन है जो लोगों को इधर से उधर ले जा रही थी। कोई मर गया था, कोई शायद एक होप के साथ जा रहा था कि वापस आएगा, कोई अपने घर वालों को पीछे छोड़ गया था। कुछ लोग तो अपने घर वालों को मरते हुए देखे रास्तों में, बीच में रुक रुक के। शायद यही सबसे बड़ा एक ट्रैजिक पॉइंट था, जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि इंसानियत कितनी जरूरी है हुक्मरानों के नजर में, ये बात पहुंचाने के लिए कि ऐसी बातें लोग के दिमाग में जाए। दिलजीत का जो कैरेक्टर है, मेरे हिसाब से ऑडियंस इस कैरेक्टर को गलत समझ रही थी। निर्वैर जो है प्रोटैगनिस्ट नहीं है, निर्वैर एक विटनेस है, एक साक्षी है जो सब कुछ होते हुए देखना चाहता है। उसका काम कहानी जीना नहीं है, ना उसका वक्त काम है कि उस कहानी को जी पाए। शायद वो राइटर्स, चाहे वो मेरे लिए वो ऑडियंस और उस कहानी के बीच में एक कहानी सुनाने वाला था, और हम भी वही कर रहे होते हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हमें एग्जैक्टली ऐसी स्टोरीज देते हैं, ब्रोकन, डिसजॉइंटेड, इनकम्प्लीट सी, हाफ मेमोरी, हाफ साइलेंस, कैरेक्टर्स डिफरेंट। वो मून का कैरेक्टर बताना, सरगोता जो है वो मून के कैरेक्टर से दिखाया गया है, क्योंकि उसके लोग थे। मार्स से आए गए क्योंकि वो दूसरी तरफ के लोग थे, दूसरे देश या दूसरे धर्म, या वो अपने लोग नहीं थे। तो उनको मार्स का बताया गया, दूसरे ग्रह का बताया गया है कि वो मार्स से आए थे। उनके कैरेक्टर्स बहुत डिफरेंट थे, क्योंकि ईश्वर सिंह के किरदार में, ईश्वर सिंह का जो किरदार है उसकी मेमोरी में सारे लोग वो थे जो उसको याद थे, उसके अपने लोग। पर जब वो लोग बदल गए थे और वही लोग नफरत की बात कर रहे थे, जो वो कहता भी है कि हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हिंदू, मुसलमान और सिख साथ नहीं रहते हैं, मुझे कोई बता दे, कैसे अलग कर देंगे, क्यों अलग कर देंगे। और शायद यही रेड क्लिफ की और अंग्रेजों की बर्बरता थी, which they should have been apologetic to their heart and core formally even now। जिस तरह की बर्बरता ब्रिटिशर्स ने की थी विदाउट एनी रैशनल,
कीड़े मकोड़ों की तरह हिंदुस्तानियों को मारा गया था उस समय। ऐसा लगता है कि जब आगे बस एक समय था जिस समय में बस जो भी उस समय के दौरान, चाहे वो सिख भाई बहन हुए, चाहे हिंदू भाई बहन हुए, चाहे मुसलमान के भाई बहन हुए, जो उस गर्दिश में, जो उस दहशत में का हिस्सा नहीं बन पाया, कभी तो एक, और मुस्लिम कम्युनिटी को मोबिलाइज करना आसान था, इसलिए ज्यादातर लोग आप देखेंगे कि उठा के मोबिलाइज करने का प्रयास उस समय इन्हीं लोगों को किया गया। बाहर से कबीलियों को, अलग अलग देश के लोगों को बुला बुला के, अफगानिस्तान से, बाहर बाहर से लोगों को बुला के वहाँ पे इम्प्लांट किया गया कि उस तरीके का एक दहशत आप क्रिएट कर सकें। और वो दहशत भी कैसा, इस दहशत में आपके अंदर एक डर बैठे, टेरराइज फैक्टर हो, कि आपको आने के पहले आप 10 बार सोचें कि शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। वो फैक्टर था। तभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो सपना था, जिन्ना का, चाहे नेहरू का, चाहे उन सारे हुक्मरानों का, जो ये तय कर लिए थे कि हमें पावर चाहिए, सत्ता चाहिए। और ब्रिटिशर्स के लिए, अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा टूल था पाकिस्तान, कि हम इसको टूल बना के रखेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ और कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो तभी हो पाता जब लोगों के बीच में नफरत पैदा होती, और वो नफरत ऐसी होती कि जो कभी भी इनको एक नहीं होने देती। इसलिए इम्प्लांट किए गए लोग, ये महसूस कराते हुए कि आपको अपने लोग मार रहे हैं, मुसलमानों को इम्प्लांट किया गया, ग्रुप्स बनाए गए, उनको काम दिए गए, उनकी भक्ति को क्रिएट किया गया अपने हुक्मरानों की तरफ, और उनसे फिर फरमान आता था किसको किस वक्त कैसे मारना है। उस मारने को लेके की जो पूरी वजूहत थी, बस इतनी थी कि ये अब हिंदुओं की मिट्टी नहीं है, और ये करना आसान था। और रिटेलिएशन फाइट दोनों तरफ से फिर होने लगा। वो उधर के लोग मारते थे, हम उधर के लोग मारते थे, और हम ये शायद भूल चुके थे कि ये सब हमारे लोग हैं। कुछ और लोग बीच में आ गए हैं और उस लड़ाई को मोबिलाइज कर दे रहे हैं, ईंधन बन गए हैं उस लड़ाई में, और हम भी कूद गए। शायद यही हर्ड मेंटालिटी थी जो आज तक हमारे देश को कभी आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इतने जख्म क्रिएट किए हैं कि वो जख्म के जो दर्द है, जो भूमिका है, जो मेमोरी है, वो आज भी रही है। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जो है वो मुझे म्यूजिक कम और एक हॉन्टिंग ज्यादा लगता है। रहमान जो है वो मेलोडी कंपोज नहीं कर रहे थे। रहमान एक मेलोडी के थ्रू एक मेमोरी को कैप्चर करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके थ्रू बीजीएम बहुत बार डायलॉग से ज्यादा बोल देता है। कभी एक फ्लूट बहुत ज्यादा कुछ बोल जा रही है, कभी एक डिस्टेंट सी रिंग, कुछ स्ट्रिंग जो है वो कुछ बहुत बोल जाती है, कभी ऑलमोस्ट साइलेंस, शांति बहुत कुछ बोल जा रही है, और साइलेंस भी म्यूजिक बन जाता है। जैसे कोई पुराना घर बोल रहा हो। बहुत कम इस्तेमाल किया गया है म्यूजिक का। ट्रेन चल रही है शुरू में भी, उतर के वो नीचे आ रहे हैं, कोई म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं, कोई इम्प्लांटेड इमोशन क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे इम्तियाज अली। और ये शायद उस आदमी का जीनियस है। मेरी फिल्म का सबसे पेनफुल मोमेंट वायलेंस नहीं है, पेनफुल मोमेंट है रियलाइजेशन। जब आदमी समझता है कि मैं वापस तो जा सकता हूँ, लेकिन जो ढूंढ रहा हूँ, क्या वो वापस मिलेगा। ये वही फीलिंग है जो हर माइग्रेंट फिल्म फैमिली कैरी कर रही है। आप लाहौर जा सकते हो, आप सियालकोट जा सकते हो, आप सरगोदा जा सकते हो, लेकिन 1947 का वाला लाहौर नहीं मिलेगा आपको। 1947 वाला सरगोदा नहीं मिलेगा। एंड जो पूरी कहानी है वो एक ही सवाल पूछ रही है कि क्या क्लोजर पॉसिबल होता है। शायद नहीं। और यही मुझे जीनियस लगता है इम्तियाज अली का, क्योंकि रियल लाइफ में क्लोजर रेयरली मिलता है। हम शायद बस जीना सीख जाते हैं उस क्लोजर के बिना। फाइनली ईश्वर अपने पास्ट के सामने खड़ा होता है तो फिल्म रियूनियन के बारे में लोग को लगता है, बट फिल्म जो है फॉरगिवनेस के बारे में भी बहुत लोग को लगता है कि है ये शायद। मुझे लगता है फिल्म एक्सेप्टेंस के बारे में एक एक अंदर से अंतरिम शांति की तरफ है। एक वक्त था जब उसने सोचा था कि मैं वापस आऊंगा, एक पुराने नए नवेले आशिक की तरह, अपने वादे की तरह, एक चुनौती की तरह। लेकिन आखिर में वो लाइन बदल जाती है। अब उसका मतलब होता है मैं वापस आऊंगा क्योंकि मेरा एक हिस्सा कभी गया ही नहीं, जो नसीर साहब का कैरेक्टर भी बोलता है कि मैं तो कभी गया ही नहीं थी, मैं तो वहीं था, शरीर मेरा बस आगे बढ़ गया था। और यही फिल्म मुझे तोड़ देती है, क्योंकि रियलाइजेशन ये है कि ईश्वर ईश्वर जो है वो जिया को नहीं ढूंढ रहा था,
ईश्वर खुद को ढूंढ रहा था। वो 17-18 साल का लड़का जो सरगोदा की गलियों में खुश था, जिसके पास मोहब्बत थी, जिसके पास घर था, जिसके पास फ्यूचर था। पार्टीशन ने जिया को नहीं छीना, पार्टीशन ने उस वर्जन ऑफ ईश्वर को छीन लिया। फिल्म खत्म होने के बाद आपको प्लॉट याद नहीं रहता है, वो एक फीलिंग याद रहती है। यही फीलिंग मुझे खुशवंत सिंह, मंटो और भीष्म सानी छोड़ की बुक्स पढ़ने के बाद छोड़ जाती थी। एक अजीब सा खालीपन, एक अजीब सा दर्द जिसका नाम नहीं है कुछ। आ, जैसे किसी ने आपके अंदर एक पुरानी रेल चला दी हो, और वो भी रेल अभी भी चल रही है शायद जब मैं ये बोल रहा हूँ, धुआं छोड़ते हुए, सीटी बजाते हुए, 1947 से लेकर 2026 तक। और उसके एक एक कंपार्टमेंट में ईश्वर बैठा हो, खिड़की के बाहर देखते हुए, बस एक ही लाइन बार बार बोलता हुआ कि मैं जी वापस जाऊंगा। और तब समझ में आता है कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहता था, वो वक्त में वापस जाना चाहता था। और दुनिया में उससे ज्यादा ट्राजिक डिजायर कुछ नहीं है। क्योंकि लोग बहुत सारी बातें कर लेंगे और बहुत सारी बातें समझ लेंगे, लेकिन जब वो अपने कैरेक्टर की को का पोर्ट्रेट देखता है और जब जानता है कि उसकी नज़र सबसे पहले चांद बालियों में जाती है, और वो देखता है कि चांद बाली भी नहीं है उसके एक तरफ, उसके दिमाग में बस ये चलता है कि, और शायद जब ऑडियंस को भी रियलाइज होता है कि वो जब तक जी रही थी तो उस मोमेंट के लिए जी रही थी कि शायद वो वापस आएगा। जो उसकी अ, जो देवरानी रहती हैं, जो कहती हैं भाभी साहब, 10 साल पहले उनकी डेथ हो गई। सबसे ट्रेजिक सीन था कि वो चली गई। लेकिन ये बात और भी ट्रेजिक हो जाती है कि अपने आखिरी समय तक वो चांद पाली ही पहनती थी, इस याद में, इस कोशिश में, इस उम्मीद में कि वो दूसरी चांद वाली लेके आएगा। ये बहुत कुछ बताता है कैरेक्टर्स के बारे में, इंसानों के बारे में, कि हम कई सारी चीज़ों को अनरिजॉल्व छोड़ देते हैं, पर हमें ये नहीं समझ में आता है कि शायद हमारे लिए कितना मुश्किल होता है ये जानना समझना, पर एक इंसान के लिए जो जो रिश्ते हैं, जो कहानियां हैं, वो बिछड़ी की बिछड़ी रह जाती हैं, और वो रिजॉल्व नहीं होती हैं, और वो हो भी नहीं सकती। इंसान शरीर ऐसा नहीं बना है जितना बर्बर तरीके से और ब्रूटल तरीके से हम इसको अब रखने लगे हैं। क्योंकि एक फेक हाइपर चेस्ट थम्पिंग मैकेनिज्म हमें पिलाया जाता है, दिखाया जाता है, पर इंसान मूलतः तरीके से ऐसा नहीं है, जो उसकी खासियत भी है। और शायद उसको किसी जमाने में किसी ने ये एहसास करा दिया कि शायद ये उसकी चुनौतियां हैं, ये उसकी मुश्किलात है कि वो इमोशनल है, ये उसकी मुश्किलात है कि वो नहीं भूल पाता समाज की, लोगों की, अपने परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ाने के लिए इंसान आगे बढ़ जाता है, पर रिश्तों को शायद नहीं भूल पाता। और ऐसे रिश्ते जहाँ पे एक पल में सब कुछ ओझल हो गया, चला गया। और जाकिर खान ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जब एक कपड़े को अचानक से चीर दो ना बीच से, उसके धागे और सिलवटें रह जाती हैं। वो ऐसी सिलवटें और धागे होते हैं कि आप उन्हें काट नहीं सकते। वो धागे और सिलवटें हमेशा इस बात का एहसास दिलाती रहेंगी आपको कि कहीं के फाड़े हुए हैं। और जब वो रियलाइज होता है वो सिलवटों को देख के, तो आपको बहुत दर्द फील होता है कि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी अनरिजॉल्व चीजें हैं जो शायद शरीर के साथ ही वापस चली जाएंगी, और उनके साथ ही आपको रहना पड़ेगा, उनके साथ ही आपको जीना पड़ेगा। उन समय की गलतियां, उन समय के शौक आपके दिमाग में बस रह जाते हैं। उसका कोई किरदार नहीं होता, उसका कोई चेहरा नहीं होता, उसकी कोई तामिल नहीं होती कि जिसको देख के आप बता सको, समझा सको। वो आप तक रह जाती है। फीलिंग ऑफ बीइंग डिवॉइड समथिंग रहता है। आप उसको लेके मन भारी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब आदत सी हो गई है वैसे रहने की। आपको लगता है यही मेरा ओरिजिनल ओरिजिनल सेल्फ है, जिसमें वो भारीपन हमेशा आपके साथ रहता है। इंसान का किरदार कितना अनरिजॉल्व होता है कि वो उसके हिस्से में कितना कुछ होता है, वो चाहे तो कितना कुछ कर ले, पर एक अपने इंसान के होने से वो कुछ नहीं कर सकता। वो अगले का भी उतना ही होना जरूरी है। पर रिश्ते सामाजिक मूलतः विश्वासों से आगे नहीं बढ़ पाता इंसान। और
यही शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और ताकत भी शायद। What makes मैं वापस आऊंगा so affecting that it is not really a film about partition. Partition is the historical backdrop of justice, but the film is ultimately about memory, about the longing and the impossibility of returning to a world that no longer exists. And it begins with an elderly Ishar or Asgar, depending upon the timeline being presented. A man whose body has aged into the present, but whose mind remains trapped somewhere in 1947. हम सबका दिमाग कहीं ना कहीं एक ट्रैप हो चुका है उस समय में, एक समय में जहाँ पे वो चीज़ें रिजॉल्व नहीं हुई, जहाँ पे आपको मालूम है कि वो किस तरीके का प्यार है, किस तरीके की का इमोशनल अटैचमेंट है, पर वो आप उससे आगे नहीं बढ़ पाए, उस फीलिंग ऑफ बीइंग इन दैट मोमेंट से आप कभी उभर नहीं पाए। कमजोरी भी है, ये ताकत भी है। शायद जितना दुख हम झेलते हैं शायद हमें उतना ही दुख मानव बनाता है, और पर वो जो झेलने के लिए आपको जितनी ब्रुटैलिटी से गुजरना पड़ता है, वो शायद इंसान फिगर आउट ही कर रहा है अभी कि कैसे डील करें, कैसे इसको अपने समय के साथ, अपनी उम्र के साथ आगे बढ़ाते जाएं। एंड यू सी दैट man whose body has aged into the present but whose mind remains trapped. His desire to reach Sargodha uh, was not just geographical, it is an attempt to reclaim a fragment of himself that, you know, history and partition stole. From the opening moments, the film establishes that this is not a road trip narrative or even a conventional romance that the director is trying to put forth. It is a story about a promise that becomes a bond. The phrase "मैं वापस आऊंगा" evolves from a very hopeful declaration to a very lifelong burden, a sentence that carries or carried across the decades by someone who never truly left the place he longs to return to. We all went with that feeling कि कभी कभार हमारे जिंदगी में ऐसे कुछ रिश्ते हो जाते हैं जिनसे आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, शायद आप किसी को कहने भी नहीं सकते, और आप ये भी नहीं कि आप जिंदगी के अभी के रिश्तों को आप पूरी तरह से निभा नहीं रहे हैं, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं, पर किसी को समझा नहीं सकते, किसी को कह नहीं सकते। वो एक भीतर कोई लड़ाई है जो कभी कभी लड़नी पड़ती है आपको अपने आप से, कि वो क्या है आपको भी नहीं मालूम। वो ऐसा डेंट पड़ता है दिमाग में, अपने शरीर में, कि आपका शरीर आगे बढ़ रहा होता है पर आपका जो आत्मा है, जो मन है, वो तितर बितर हो चुका होता है। अब उसको समझाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक पूरी बाउंड चीज को आप समझा सकते हैं, पर तितर बितर गिरी हुई चीज को नहीं समझा सकते। द फिल्म्स इमोशनल पावर, you know, lies in how carefully it constructs the world before the destruction. If you see the early sections that are filled with ordinary details, streets, friendship, flirtations, family gatherings, and youthful dreams, Imtiaz Ali somewhere deep down understands a lesson that the greatest partition writers understood long before him. That tragedy only hurts when the audience first falls in love with what is about to be lost. जब तक आप ऑडियंस को ये महसूस नहीं कराएंगे कि जो आप देख रहे हैं उसका लॉस होना कितनी बड़ी बात है। मैं एक उत्तर प्रदेश के एक ग्रामीण क्षेत्र क्षेत्र में बड़ा हुआ लड़का, मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग, कितनी समुदाय, कितनी जनता वहां से माइग्रेंट बनी, निकली, कितनी लाशें गिनी, कितने लोग को मारा गया, कितने लोग अपने परिवार को मरते हुए देखे, कितने मर्दों ने अपनी बीवी, अपनी बहनों को रेप करते हुए लोगों से देखा, मुझे नहीं मालूम। और मुझे वो फीलिंग महसूस करनी है क्योंकि कुछ लोग महसूस किया, और मैं उस फीलिंग से डिवॉइड नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक हिंदुस्तानी या इंसानी रूप उस दर्द को, उस पेन को फील नहीं करेगी तो उसको ग्रेविटी नहीं समझ में आएगी कि ऐसी चीज फिर कभी इंसानी इतिहास में ना हो। तो वहां से मुझे लगता है कैरेक्टर बहुत डेवलप करता है कि वो समझाने का कोशिश करता है कि ये सब जो चीजें आप देख रहे हैं शायद जा रहा है, और कैमरा उसको कैप्चर भी ऐसे कर रहा था कि शायद ये फेड हो रहा है सब, एंड दैट इज व्हाई इट हर्ट्स द मोस्ट।
That is why the film frequently evokes the very landscape of Khushwant Singh train to Pakistan. Uh, if I may give the context, in that novel, Mano Majra is not initially presented as a site of religious conflict, and it is a living community where identities coexist before politics has arrived to shatter them. Similarly, in Main Wapas Aunga, Kino and Afsana's world is not defined by national borders. Their reality consists of small moments. There are shared spaces between them. There is laughter amongst them, and there is a possibility of future. Now, history enters that the world is like an intruder. It is not invited, and maybe probably it does not ask the permission. This is perhaps the central insight shared by both the uh, film and much of the partition literature. So, ordinary people, do not and will not create history. They suffer the very consequences of it. Kinu is not a political actor. He's simply someone whose future becomes collateral damage in a conflict that is maybe larger than his love. That same idea has runs through the works of Sadat Manto, Bhisam Sahani, Intizar Hussain, for that matter, Kuratulin Heather. Their characters are really rarely are the architects of event. They do not show the violence, death chill. They are witnesses, survivors, and victims that are forced to navigate beyond their control. जब आप ये समझेंगे कि वो पूरा कैरेक्टर देखिए वेदांग राणा का कि कितना कुछ हो रहा है, कितनी कुछ बातें हो रही हैं बैकग्राउंड में। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊंचे हुक्मरानों की आवाज़ की जा रही है। जब शर्वरी का कैरेक्टर खड़े होकर के पोएम बोल रहा होता है तो उस समय एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ पे कहा जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक देश, दो देश बनने जा रहे हैं और लोग को अपना देश चुनने का इजाज़त दिया गया है। और उस कैरेक्टर में आप देखेंगे बैकग्राउंड में बहुत चीज़ें चल रही है, पर वेदांग रैना का जो कैरेक्टर है, जो नसीर साहब का जवानी कैरेक्टर है, वो बस एक खुश है क्योंकि उसके दिमाग में दुनिया की सारी तामील, जो बुरे काम, जो गलत चीज़ें चल रही हैं, उसके दिमाग में आ ही नहीं रहा है। वो खुश है, वो एक एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से, मतलब बहुत सारे लोग आपको रिव्यू दिए होंगे और बताए होंगे चीज़ें कि देखिए कितना अच्छा एक्टिंग हुआ है, और इट शोज डिलाइटफुली हाउ द डांस एंड कोरियोग्राफी हैज बीन डन, which of course shows the reflects back to the time where all these things were happening, and it shows perfectly uh, वेदांग रैना का जब पहली बार मिलना शर्वरी को उस जगह पे जहाँ पे वो सीढ़ी पे बैठ के बात करते हैं, और उसका पाल्पिटेशन फील होना जैसे ही वो पास आ रही है, और शर्वरी का एक एक्स्ट्रा फर्दर लेना वेदांग रैना के कैरेक्टर के साथ कि उसको नॉर्मल फील हो, क्योंकि वो पता था कि वो लड़का कभी नहीं आगे से करेगा, क्योंकि समाज में एक तरीके का एक करेक्टराइजेशन हो जाता है उसका, तो लड़की को शायद अच्छा नहीं लगे, तो लड़की ने खुद वो स्टेप लिया। वो पूरे कैरेक्टर में आप देखेंगे वेदांग रैना का कंधा झुका हुआ है, इज ऑलवेज ऐसे, एंड हिज आईज आर ऑलवेज डाउन इन फ्रंट ऑफ हर। बहुत कुछ महीन एक लेवल की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कैरेक्टर ने क्रिएट की अपने लेवल पे, जो देखने लायक है, जो समझने लायक है कि ये कैसे क्रिएट किया गया, ये बना कैसे। और and if you see the story progresses, the film increasingly resembles the emotional terrain of Manto's Tobatik Singh. Uh, Bishan Singh, who desperately asks where his hometown belongs to, India or Pakistan, and he receives no satisfactory answer. And his confusion is not geographical, but it is very existential question that he is asking Tobatik Singh. And the same question haunts Ishar Singh throughout the film. That what exactly is he trying to return to? Is a city, a house, a person? और वही डर, वही सोच दिलजीत दोसांझ के कैरेक्टर के साथ भी फील होती है कि बार बार ये सोचता है कि वेयर ही इज रिटर्निंग बैक टू, जा कहाँ रहे हैं। One of the most films most discussed strength, it is the refusal to reduce the partition to just a spectacle. Many historical dramas focuses on bloodsheds, riots, and mass violence. This movie does not ignore those realities, but it is more interested in the aftermath than the event itself. वो ज़्यादा हॉन्टिंग है क्योंकि कैरेक्टर जो है वो पहले पूरा कैरेक्टर सेट किया, लोकेशन सेट किया, इन्वायरमेंट सेट किया, नेचर सेट किया, लोग के कैसे थे फ्लर्टी, थोड़े से मज़े कर रहे हैं, यूथफुलनेस है, एक पॉसिबिलिटी है आगे जाने की,
गलियां, चौराहे, साइकिल, वो खेत, वो सब एक मेमोरी क्रिएट कर रहे थे आपके दिमाग में। कैमरा एंगल भी ऐसे, उसके लाइट कंट्रास्ट भी हाई कर दिया गया था कि सब कुछ, ये सब कुछ फेड हो रहा है, शायद ये सपना है, आप अपने सपने में देख रहे हो ये। कहीं ना कहीं कैरेक्टर जो है, जो ऑडियंस है, उसको वो दुनिया दिखाने की कोशिश की जाती थी जो नसीर साहब दिखने का प्रयास कर रहे थे। वो नसीर साहब की दुनिया की नज़र से वो दुनिया दिखाई जा रही थी। तभी शायद उसका दर्द महसूस हो पाता, क्योंकि जब तक आप कैरेक्टर और उसकी गलियां, उसके चौबारे, उसका ब्रिज जहाँ पे वो लोग दूसरे के पीछे भाग रहे थे, वो साइकिल, वो कॉलेज को उस तरह नहीं देखेंगे जिस तरह से नसीर साहब का कैरेक्टर देख रहा था, तो जो अंत में जो 30 मिनट का क्लाइमेक्स है, वो आपको तोड़ेगा ही नहीं। It technically examines what remains after homes are abandoned, relationships are severed, and the entire ways of life has been erased. This approach technically recalls me the Bhisham Sani's Tamas. Everybody should read Tamas, where violence emerges not as an isolated explosion but as the culmination of fear, distrust, humor, and gradual social fragmentation. There is a social fragmentation you can see happening in front of you between people, but these two people who are in love with each other, they do not see that fragmentation. They are ignoring that fragmentation, or maybe they are not, for their eyes it is not visible, that fragmentation, because उनके मन में प्यार है. They cannot see that fragmentation because they are carrying something very deep inside themselves, which not which is not making them let to see the devastation that is happening around them. The tragedy lies not only what has been killed, who has been